Class, are you ready for your physics class? So children, we are talking about friction, and this is your next friction class, right? And do you remember we were talking about the friction on an inclined plane, and we have reached on a very important formula. I think you remember. A block is placed on an inclined plane of angle theta, and the frictional coefficient between the block and the surface is mu. Remember, the mass of the block is m, and you know that mg sine theta is pulling it down. So frictional force appears between the two surfaces, and maximum value of this frictional force is mu n, where n is normal reaction force, or I can write it mu r because n is also the symbol for Newton. So let me write it R, normal reaction force, and normal reaction force is equal to mg cos theta. Now we are familiar with all these logics. So there was a particular angle known as angle of repose, and that angle of repose is equal to tan inverse mu. Do you remember how we came to this conclusion, this formula? Mg sine theta at angle of repose is exactly balancing by the frictional force of the maximum value of the frictional force, that is mu r. So mg sine theta naught, where theta naught is angle of repose, is mu r, and r is mu mg cos theta naught, and m is cancelled, g is cancelled, so tan theta naught is equal to mu. This is the revision of the last class, right? Now we move to the next very important part. I'm just taking you through the all cases step by step, increasing the difficulty level one by one, and after getting the information about inclined plane, it's not complete information actually, but after getting the information about inclined plane, now I move to the case when a block is placed over another block. So children, this is block of mass capital M, and this is a block of mass small m placed over the lower block, right? Now a force capital F is exerted on the lower block. Think about this. What will happen if the lower block is experiencing a force and the lower block will try to move in the direction of force? And when capital M will try to move in the direction of F, just think of it beta. This block will move with respect to the upper surface also and lower surface also. Upper surface also and lower surface also. So there will be frictional force between this block and the floor, and there will be frictional force between upper block and the lower block. To make the case simple, I made this floor smooth for the time being. So we have to consider the frictional force between these two blocks only. Clear? Now first we will observe it actually what is happening, then you will get the real
picture. So I am having here the small models representing the two blocks, right? And if I exert force on, say, lower block, I exert force on the lower block, the red block. Now if red block is experiencing force, then red block should move. Why this block is moving? Do you have any idea? If I am exerting force on this red block, then red block should move. The upper block is not experiencing any force. Why this upper block is also moving? Now this is the point where you have to pay attention. Why upper block is moving? Because of friction. Yes, we always have an idea that frictional force is always opposite to the motion, right? Always opposite to the motion. But here the frictional force is reason for this block to move. Now here we want to understand the logic behind it. If the force is exerted on the lower block and lower block tries to move in the direction of force, make it clear, make the logic clear. This red block tries to move in the direction of force. See, I am exerting force on the lower block and lower block tries to move in the direction of force. It is moving with respect to this golden surface. With respect to this golden surface, this block is moving in right direction. So friction wants to keep these two surfaces together. So friction will try to stop the red surface to move in right direction. Now tell me, if friction wants to stop the red surface to move in right direction, then friction should have the direction obviously towards left. Then only friction can stop this body to move towards right. तो इस बात को, सबसे पहले इस बात को मेंशन कर लेते हैं अपने डायग्राम में. बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और जो लोअर ब्लॉक है, जब वो फोर्स के अकॉर्डिंग मूव करना चाहेगा टुवर्ड्स राइट, तो ये एक्सपीरियंस करेगा फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट. कहाँ पर? अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक की सरफेस के बीच में होगा ये फ्रिक्शनल फोर्स. क्यों? क्योंकि फ्लोर पे तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, वो तो स्मूथ है. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हुआ और वो लोअर ब्लॉक को नहीं चाहता कि ये आगे राइट डायरेक्शन में मुड़े, क्योंकि ये चाहता है कि दोनों सरफेसेस साथ रहें, तो फ्रिक्शनल फोर्स को ऑब्वियसली टुवर्ड्स लेफ़्ट होना पड़ेगा. तो अपर ब्लॉक पर टुवर्ड्स लेफ़्ट. एक काम हो गया. आगे बढ़ते हैं. अब रेड ब्लॉक तो जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में राइट. जस्ट ऑब्जर्व, फोकस ऑन द येलो ब्लॉक, फोकस ऑन द गोल्डन ब्लॉक and tell me in which direction the golden block is appearing to move with respect to the red block. Can you feel it? The golden block is actually it is not shifting anywhere, but if you just observe the motion, golden surface का motion red block के respect में left में है बेटा. दिख रहा है? red block red में right में जा रहा है, तो गोल्डन ब्लॉक जो है वो किस तरफ स्लिप करता फील हो रहा है? लेफ्ट साइड में. तो अगर दो सरफेसेस चलेंगी
एक राइट में जा रहा है तो ऊपर वाली सरफेस ऑब्वियसली किधर चलती फील होगी? लेफ्ट में। एक और सुंदर बात बताऊं, अगर तुम ऑब्जर्वर की तरह रेड पर बैठ जाओ, क्या सिखाया है तुमको? जैसे ही तुम रेड पर बैठे, तुम्हारे रिस्पेक्ट में रेड ब्लॉक रेस्ट पर आ गया, तो तुमको क्या दिखाई देगा? तुम रेड ब्लॉक पर बैठे हो, रेड ब्लॉक राइट जा रहा था, लेकिन जैसे ही तुम रेड ब्लॉक पर बैठे, रेड ब्लॉक कैसे आ गया? रेस्ट पर। तो असल में तुमको क्या फील होगा कि जैसे गोल्डन ब्लॉक पीछे की ओर जा रहा है, लेफ्ट में। तो मतलब अगर फ्रिक्शन चाहता है कि गोल्डन ब्लॉक भी स्लिप न करे, तो फ्रिक्शन रेड ब्लॉक को राइट जाने से रोकेगा और लेफ्ट गोल्डन ब्लॉक को लेफ्ट जाने से रोकेगा। तो गोल्डन ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आगे और रेड ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे, और चाहेगा कि किसी तरह इन दोनों का ये जो रिलेटिव मोशन है ना, अब हम सिर्फ आगे कभी भी मोशन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपीयर्स अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन। तो जो राइट जा रहा है उसकी ओर लेफ्ट, जो लेफ्ट जा रहा है उसकी ओर उस पर राइट। समझ आ रही बात? तो नीचे वाले ब्लॉक पर लेफ्ट लगा, क्यों लगा हम समझ गए। ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की ओर लगेगा, क्योंकि बेटा जो रफनेस है वो तो दोनों सरफेसेस को एक्सपीरियंस होगी ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स लोअर ब्लॉक को भी फील होगा और अपर ब्लॉक को भी। लोअर ब्लॉक राइट जा रहा है रिलेटिव टू अपर ब्लॉक, तो वो लेफ्ट की ओर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अपर ब्लॉक रिलेटिव टू लोअर लेफ्ट जा रहा है तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा आगे की ओर। और हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जब मैंने फोर्स, ये देखो फोर्स मैं रेड पे लगा रही हूँ लेकिन चल दोनों रहे हैं, दिख रहा है बेटा? तो जब फोर्स मैं रेड को लगा रही हूँ तो रेड मेरे फोर्स की वजह से चल रहा है। हमेशा ध्यान रखो, जिस ब्लॉक पर फोर्स लगा वो ब्लॉक फोर्स को रिएक्ट करेगा। इस गोल्डन ब्लॉक का मेरे फोर्स से कुछ लेना देना नहीं है। गोल्डन ब्लॉक पर तो मैंने फोर्स लगाया ही नहीं है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है कि जिस पर फोर्स लगाए स्टेट तो उसकी चेंज होगी ना। ऊपर तो फोर्स लगा ही नहीं है, तो ऊपर वाला क्यों चल रहा है? ऊपर वाला इसकी वजह से चल रहा है। ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो ऊपर वाले ब्लॉक को चलने में मदद कर रहा है। तो अगर अब मैं ये स्टेटमेंट दूं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन, ट्रू और फॉल्स? नो, इट्स फॉल्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन and many times it helps to move a body. Even we move on earth because of this frictional force. Because when we exert force on the earth in backward direction due to friction, the earth reacts to us and we move in forward direction. अगर हम बहुत चिकनी सरफेस पर चलने की कोशिश करें तो क्यों गिरते हैं, स्लिप कर जाते हैं? क्योंकि जब हम पीछे की ओर अर्थ पर फोर्स लगाते हैं इन अ स्लैंटिंग वे तो हमें रिएक्शन अर्थ का नहीं मिलता। तो हम आगे बढ़ने की बजाय स्लैंटिंग वे में फोर्स, हम जो अर्थ पे फोर्स लगाते हैं वो चलने के लिए स्लैंटिंग वे में पीछे की ओर लगाते हैं। तो हमारे पैर पे अर्थ आगे की ओर रिएक्शन फोर्स देती है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जब ये बहुत स्लिपरी होगी तो हम तो चलने के लिए पीछे फोर्स लगाएंगे पर हमें आगे की ओर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, हमें रिएक्शन अर्थ का नहीं मिलेगा और हम पीछे स्लिप कर जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? तो अब हम समझेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। एक फोर्स लग रहा है लोअर ब्लॉक पर और उसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक्स चल रहे हैं, स्मॉल एम भी और कैपिटल एम भी। अब कैपिटल एम पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? स्टार्टिंग में यू कैन ड्रॉ बोथ द
In fact, not in the starting, you should always draw the blocks or all the objects which are in the problem. You draw them separately and observe the number of forces acting on a particular object and then frame the equation for that object. For example, अगर हम कैपिटल M को देखें तो कैपिटल M पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक कैपिटल F जो इसे चलाएगा और दूसरा स्मॉल f जो इसे रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये ब्लॉक चल रहा है, तो कैपिटल F जो चला रहा है और स्मॉल f जो रोकने की कोशिश कर रहा है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ही कैपिटल M को एक्सेलरेशन देगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर है ये बात बिल्कुल? अच्छा, अब स्मॉल m को भी देख लेते हैं ज़रा सा। स्मॉल m को अलग से बनाते हैं और उसे फ्लोर नहीं मिल रही है, तो आई शुड नॉट शो द फ्लोर। ये रहा स्मॉल m, फ्लोर से थोड़ा ऊपर, ठीक है ना। अब इस पर तो केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बेटा, यही चला रहा है इसको। तो जब स्मॉल m की इक्वेशन बनाएंगे तो जब एक ही फोर्स लग रहा है तो वही इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक बात है। अब ये दोनों एक्सेलरेशन देखो, मैंने एक ही सिंबल यूज़ किया है। क्यों एक ही सिंबल यूज़ किया है? बिकॉज दे आर मूविंग टुगेदर, because they are moving together, so they must have acceleration equal। और ये simplest form of question है टू ब्लॉक सिस्टम का, कि इनका acceleration सेम है और आप इन दोनों की हेल्प से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इन दोनों की हेल्प से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कुछ आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी आस्क्स दैट एक्सेलरेशन इज a meter per second square, then find frictional force। ठीक है, सिंपल केस बता रही हूँ, तो क्या करोगे? म्यू इंटू एन करोगे। कुछ समझाया है तुमको, उसे रिकॉल करो बेटा। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन पर तभी पहुंचता है जब इसको मजबूरी होती है। म्यू आर कर लो, क्योंकि न्यूटन के लिए भी हम एन सिंबल यूज़ करेंगे। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की। ये तभी अपीयर होगी जब और कोई रास्ता नहीं हो फ्रिक्शनल फोर्स के पास। तो अगर हमको उन्होंने कहा कि एक्सेलरेशन इज a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इन दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है या उससे पहले ही चीज़ें सेटल डाउन हो गई। फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंचा। F की वैल्यू ऐसी थी कि उसकी अपनी किसी लोअर वैल्यू पर ही वो F को बैलेंस कर ले गया, और बीच में जो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी थी उसको उसने रोक दिया। तो दोनों ब्लॉक चल रहे हैं, पर अब दोनों ब्लॉक की सरफेसेस टुगेदर हैं, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स की इच्छा थी। तो कैसे निकालेंगे फिर फ्रिक्शनल फोर्स? हमको ये बताया है कि एक्सेलरेशन इतना है, और हमें पता है कि अगर ये F न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाएगा। तो चलो पहले हम एक सिंपल सा ये ही काम कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखो, F माइनस स्मॉल f इज कैपिटल M A and small f is small m A। Substitute this value here, so f into minus m A is capital M A। ठीक है ना। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब कैपिटल F इज
m प्लस स्मॉल m इंटू a, क्योंकि कैपिटल M जो है ये जब इधर जाएगा तो हम एक्सेलरेशन को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली तो हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड इट, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन तो हमको सिर्फ कैपिटल F की वैल्यू पता है, कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू पता है और हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो हमको इस वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है और सिर्फ 3 बातें बताई हैं कि कैपिटल F इसको चला रहा है और इस ब्लॉक का मास कैपिटल M है, इस ब्लॉक का मास स्मॉल m है। बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, दोनों ब्लॉक्स एक साथ चल रहे हैं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन। तो हमें कुछ करना नहीं है, दोनों इक्वेशंस कैसे बनाई देखा तुमने, और उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। एक्सेलरेशन इतना आ गया, ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई स्मॉल m कैपिटल F अपॉन m प्लस स्मॉल m। एक ही जगह पर इसकी वैल्यू रख दी। बात क्लियर हो रही है बेटा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमें म्यू आर से नहीं निकालनी है। तो म्यू आर से वैल्यू कब निकलेगी, जब ये मेंशन हो कि फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम लग रहा है दोनों सरफेसेस के बीच में। और ये आइडिया आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ज़रूर दिया रहेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लग रही है और तब आपको म्यू आर की फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर 2 ब्लॉक का सिस्टम है तो कैसे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, और कैसे अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पूछी हो तो म्यू आर की वैल्यू तुरंत यूज़ करके एफ़ नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम इक्वेशन सॉल्व करके एफ़ कैलकुलेट करेंगे। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि दोनों सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है। तो अब फ्रिक्शन की एक बहुत ख़ास बात जिसको हम सबको समझना है, फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, हम पीछे समझ भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हम समझ चुके हैं कि म्यू इंटू आर होती है। लेकिन हमने ये भी तो देखा ना सारे केसेस में कि अगर so this is very important, you copy this in your notes, and the first point is that friction is self-adjusting force. It can have any value between 0 to mu r, but when force which is applied overcomes the frictional force and object starts moving, then friction suddenly decreases from its maximum value, which is mu n or mu r. So actually friction is of 2 types, kinetic friction and static friction. When friction between two surfaces when they are moving relative to each other, then we say the friction is kinetic friction. And friction between two surfaces when they are at rest with respect to each other, then we say the friction is static friction. And for both the definitions are very important. And one more thing which is really very important, and that is maximum value of static friction when surfaces are just to move. Maximum value of static friction is called limiting friction, and limiting friction's value is mu SR. When we differentiated between the two types of friction, then mu will be written as mu SR when it is static friction, and this is maximum value of static friction. Mu S is called coefficient of static friction. And value of kinetic friction, obviously it is mu KR, where mu K is coefficient of kinetic friction.
So this is theoretical part of this Newton's laws of motion and friction, and it is important for board's exam because definitions are asked like what is kinetic friction, what is static friction, what is limiting friction. So next class, new concepts about friction and new cases of Newton's laws of motion.